Very good morning to all the participants of this webinar. I am Arvind Mishra, Deputy Director from DTRTI Lucknow. Today is 12th of August 2020. Friends, we are talking about Chapter 12 of the Income Tax Act. And yesterday we had begun with 110 and we went up to 112A, the recording of which has been already sent to you. I just want to add a bit of discussion on section 110. So सेक्शन 110 बात कर रहा है कि जहां पर टोटल इनकम में शामिल है वो इनकम जिस पर कोई टैक्स पेएबल नहीं है. सो डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स वेयर टोटल इनकम इंक्लूड्स इनकम ऑन विच नो टैक्स इज पेएबल. So this seems to be a little confusing initially, but once we understand it, the meaning becomes more clear. Where total income includes any income on which no tax is payable, then how do we determine the tax on that total income? So wherever the total income is including any tax on which no tax is payable, then the tax would have to be determined on that total income in accordance with this section 110. अब सवाल ये उठता है कि अगर टैक्स पेएबल नहीं है तो why should we include it in the total income? So we are just coming to that. There is a specific provision for that. Now 110 says that where there is included in the total income, पहली बात तो ये है कि पहली कंडीशन ये है कि टोटल इनकम में इंक्लूजन हो जाना चाहिए उस इनकम का जिस पर टैक्स पेएबल नहीं है. So where there is included in the total income of an assessee any income on which no income tax is payable under the provisions of this act, the assessee shall be entitled to a deduction from the amount of the income tax with which he is chargeable on his total income. तो उस टोटल इनकम पर जो टैक्स चार्जेबल होता है उसके ऊपर एक डिडक्शन असेसी को मिलेगा और वो डिडक्शन क्या होगा? That deduction will be an amount equal to the income tax which is calculated at the average rate of income tax on the amount on which no income tax is payable. जिस अमाउंट पर, जिस राशि पर इनकम टैक्स पेएबल नहीं है उसके ऊपर एवरेज रेट लगा के, एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स लगा के उस अमाउंट पर इनकम टैक्स को कैलकुलेट करना है. And when we calculate the income tax, applying the average rate of income tax, then that amount of income tax has to be reduced from the income tax chargeable on the total income. ये जो एवरेज रेट हमको लगाना है उस इनकम पे लगाना है जिस पर इनकम टैक्स पेएबल नहीं है. तो जहां तक एवरेज रेट लगाने की बात होती है, average rate what has been already defined in section 2, और वहां पे ये कहा गया कि एवरेज रेट मींस द टैक्स डिवाइडेड बाय द इनकम. So in case there are various types of incomes which are included in the total income, and maybe that on various different types of income different rates of taxation are applicable, so in that case an averaging will have to be done. So basically if there is only one type of income, there you have to just take the tax upon the total income, that is the average rate, and apply that average rate, and accordingly you get the tax. So by deducting this amount of tax on the amount which is on which no income tax is payable from the total income,
Essentially, what is happening is that whenever there is a total income in which one part of the total income is such that on which no tax is payable, and other part of the total income is such on which tax is payable. By adding that income on which no tax is payable into the total income or to the total income, what we are in essence doing is that perhaps taking up the marginal rate that is to be applied, or perhaps taking up the rate that is to be applied to calculate the tax on the total income. अगर वो जो इनकम है जिसको हम ऐड कर रहे हैं जिस पर कोई टैक्स पेबल नहीं है, अगर उसको ऐड ना करते तो शायद वो जो टोटल इनकम है वो एक दूसरे लेवल पे आ जाती और इसकी वजह से उसके ऊपर कम रेट लग सकता था। लेकिन इस इनकम के जोड़ने के बाद हो सकता है कि वो एक दूसरे स्लैब में आ जाएगी और उस स्लैब पर इनकम टैक्स का रेट ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि वी आर फॉलोइंग ए प्रोग्रेसिव रेट ऑफ टैक्सेशन, प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। इसलिए जहां पर भी यह प्रावधानित किया गया है कि इनकम हमको वो उस इनकम को ऐड करना है टोटल इनकम में जिस पर कोई टैक्स पेबल नहीं है, प्रावधानों के अनुसार अगर उसको ऐड करना है टोटल इनकम में, तो उसके पीछे जो मंशा हो सकती है वो यही हो सकती है कि ये जो राशि है जिस पर कोई टैक्स पेबल नहीं है उसका ये काम जरूर है कि स्लैब को बढ़ा देगी वो उस इनकम के स्लैब को जिस इनकम पे टैक्स पेबल है। सो बट बिफोर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो कौन सी राशि है जिस पर टैक्स पेबल नहीं है। सो फॉर दैट we'll just go to chapter 7. So we are going to chapter 7. Chapter 7 deals with incomes forming part of total income on which no income tax is payable. If you can see, the heading itself makes it very clear that chapter 7 deals with those incomes which are forming part of the total income on which no income tax is payable. In fact, the same sentence is being referred to in section 110. So now let us see, there are two provisions here. In fact, there is one provision only, because the second provision, which is 86A, as you can see, it has been already omitted. So we are left with section 86. So chapter 7 and section 86 is one and the same thing. Now let us see, according to section 86, वो इनकम है जिस पर जो कि टोटल इनकम में होगी और जिस पर टैक्स पेबल नहीं होगा। अगर हम इस हेडिंग को दोबारा से पढ़ें, इनकम विच आर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ टोटल इनकम, टोटल इनकम में वो हैं लेकिन उस पर इनकम टैक्स पेबल नहीं है। सो अगेन गोइंग बैक टू सेक्शन 86, तो सेक्शन 86 ये कहता है कि जहां पर भी कोई एसएससी है और वो किसी एओपी का मेंबर है या किसी बीओआई का मेंबर है, एसएससी एसोसिएशन ऑफ पर्संस या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स का मेंबर है, हाँ वो कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है या कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर होती है। यानी ये जो प्रावधान है किसी कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड सोसाइटी पर लागू नहीं होता है। उसके अलावा कोई भी पर्सन है, अगर एसएससी एक ऐसा पर्सन है जो इनमें से नहीं है, यानी कंपनी नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है और कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है जो रजिस्टर्ड हो अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसके अलावा एसएससी कोई और पर्सन है जो कि एक एओपी में मेंबर है या किसी बीओआई में मेंबर है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बनी होती है इंडिविजुअल से, एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो है वो पर्सन्स से बनी होती है। पर्सन वर्ड का मीनिंग आपने सेक्शन 2 में देखा ही है। तो जहां पर भी एसएससी एक मेंबर है एओपी या बीओआई का, तो इनकम टैक्स शैल नॉट बी पेएबल बाय द एसएससी
उस असेसी के द्वारा इनकम टैक्स नहीं पे किया जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज शेयर, उसके अपने शेयर के रिस्पेक्ट में, इन द इनकम ऑफ द एओपी और द बीओआई कंप्यूटेड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 67A। जो इनकम असेसी की एज ए मेंबर, क्योंकि वो मेंबर है, उसको एक शेयर मिलता है एओपी से या बीओआई से, और उस शेयर पर इनकम के एओपी या बीओआई इनकम कौन कमा रहा है, वो एओपी या बीओआई कमा रही है, उसका एक शेयर मेंबर को मिल रहा है। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट शेयर, और वो शेयर कंप्यूट किया जाएगा 67A के अनुसार। अभी 67A में जाके देखेंगे कि वो शेयर कैसे कंप्यूट किया जाता है। इन ए वे यहाँ पर हम एओपी और बीओआई के मेंबर का टैक्सेशन भी देख रहे हैं, बट सिंस sections across the act are connected with each other, so we have to go on referring from one to the other section and clarifying the connection, because after all these are very relevant connections and they have to be understood very clearly. So basically यहाँ पे जो बात कही जा रही है वो ये है कि जो असेसी एक मेंबर है ईओपी और बीओआई का, और वो कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी या सोसाइटी नहीं है, और उसकी इनकम जो कंप्यूट की जाती है सेक्शन 67A के अनुसार, उस इनकम पे वो इनकम टैक्स उसके द्वारा पेएबल नहीं होगा। ये बात फर्स्ट पार्ट में किया जा रहा है। उसके बाद फर्स्ट प्रोवाइजो कहता है प्रोवाइडेड दैट, यानी बशर्ते, शर्त यह है कि जहां पर एओपी या बीओआई चार्जेबल टू टैक्स है ऑन द टोटल इनकम, ऑन इट्स टोटल इनकम, यानी अपनी टोटल इनकम पे एओपी और बीओआई को टैक्स देना है जहां पर एट द मैक्सिमम मार्जिनल रेट, और उसको जो टैक्स देना है वो मैक्सिमम मार्जिनल रेट पर देना है। मैक्सिमम मार्जिनल रेट आपने देखा है, जो सबसे हाईएस्ट स्लैब होता है, जिस पे सबसे ज़्यादा रेट लगता है, इनकम का जो सबसे हाईएस्ट स्लैब होता है उस पर जो मैक्सिमम उस पर सबसे ज़्यादा रेट लगता है, और वो जो सबसे ज़्यादा रेट है उसको मैक्सिमम मार्जिनल रेट बोलते हैं। वो सेक्शन 2 में भी डिफाइंड है। और जहां पर एओपी और बीओआई इज चार्जेबल टू टैक्स ऑन इट्स टोटल इनकम एट द मैक्सिमम मार्जिनल रेट और एनी हायर रेट, मैक्सिमम मार्जिनल या उससे हायर रेट पे अगर वो टैक्सेबल है, अंडर एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के कोई भी प्रावधानों में, तो द शेयर ऑफ ए मेंबर कंप्यूटेड एज अफोरसेड, तो मेंबर का जो शेयर एज अफोरसेड, जैसे पहले कहा गया है उस तरह से जो कंप्यूटेड है, यानी कि सेक्शन 67A के अनुसार, अफोरसेड का मतलब सेक्शन 67A के अनुसार, मेंबर का जो शेयर है जो सेक्शन 67A के अनुसार कंप्यूटेड है, शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन हिज टोटल इनकम, वो उसकी टोटल इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा। तो इसमें दो बातें हो रही हैं। पहली बात कि कंडीशन ये है कि अगर ईओपी या बीओआई मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे टैक्स हो रही है उसकी अपनी टोटल इनकम पे, तो चूंकि मैक्सिमम मार्जिनल रेट टैक्स का मिल रहा है डिपार्टमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि जो शेयर मेंबर का है उसके इनकम में, वो मेंबर की टोटल इनकम में शामिल नहीं होगा। मेंबर की टोटल इनकम में शामिल नहीं होगा, दैट उसका मतलब केवल इतना ही है। उसकी चार्जेबिलिटी के बारे में मत सोचिए, केवल ये सोचिए कि उसकी टोटल इनकम में शामिल नहीं होगा वो। हम लोग सेक्शन 110 में पढ़ रहे थे ना कि कौन सी ऐसी इनकम है जो टोटल इनकम में शामिल होती है लेकिन उस पर इनकम टैक्स पेएबल नहीं होता। यहाँ पे कहा जा रहा है वो टोटल इनकम में ही शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो कोई चीज़ अगर टोटल इनकम में शामिल नहीं होती तो ऑब्वियसली कोई टैक्स तो नहीं लगेगा। और इन एनी अदर केस का मतलब यह है कि जहां पर ईओपी या बीओआई मैक्सिमम मार्जिनल रेट पर टैक्स नहीं हो रही है और उससे कम किसी रेट पर टैक्स हो रही है, मैक्सिमम मार्जिनल रेट या उससे हायर रेट के अलावा किसी उससे कम, यानी एमएम रेट से थोड़ा सा कम या कितना भी कम रेट पे अगर वो ईओपी या बीओआई टैक्स हो रही है, then the share of a member computed as aforesaid shall form part of his total income.
तो शेयर जो है उसका जो भी वो शेयर मिल रहा है मेंबर को अपना ईओपी और बीओआई से, वो जो शेयर है वो मेंबर की टोटल इनकम में जुड़ेगा या उसमें शामिल होगा। तो ये वो शेयर है जो कि मेंबर की टोटल इनकम में शामिल हो गया। Now, provided further that where no income tax is chargeable on the total income of the AOP or the BOI, the share of a member computed as aforesaid shall be chargeable to tax as part of his total income, and nothing contained in this section shall apply to the case. एक एक्सेप्शन किया जा रहा है यहाँ पे, nothing in this section shall apply to the case. कब वो ऐसा होगा कि जब बीओआई या एओपी की इनकम की टोटल इनकम पे कोई टैक्स चार्जेबल अगर नहीं होता है, एओपी या बीओआई ऐसी इनकम कमा रही इस पे कोई टैक्स चार्जेबल नहीं है, वेयर नो इनकम टैक्स इज चार्जेबल ऑन द टोटल इनकम ऑफ द एओपी और बीओआई, तो इन दैट केस क्या होगा, तो शेयर ऑफ द मेंबर का जो शेयर है जो ऊपर कंप्यूटेड एज अफोरसेड इज वंस अगेन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 67A, सो मेंबर का शेयर जो 67A के अकॉर्डिंग कंप्यूट होगा, इट शैल बी चार्जेबल टू टैक्स एज पार्ट ऑफ हिज टोटल इनकम, वो उसकी टोटल इनकम में जुड़ेगा और वो चार्जेबल टू टैक्स भी होगा, एंड नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू द केस। और उस केस में इस सेक्शन में अगर कुछ भी बात कही गई है कि उसको टैक्स नहीं देना है तो वो अप्लाई नहीं करेगा। तो ये इस सेक्शन 86 में शुरू में ही कह दिया गया कि अगर कोई मेंबर है तो उसको टैक्स नहीं देना है। उसके बाद ये कह दिया गया नहीं, अगर यूपी और बीओआई मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे टैक्स हो रही है तो हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे उसकी टोटल इनकम में। फिर उसके बाद ये कहा गया नहीं, अगर मैक्सिमम मार्जिनल रेट से कम रेट पे टैक्स हो रहा है तब हम उसको मेंबर के शेयर को उसके टोटल इनकम में इंक्लूड करेंगे। तो subject to this proviso, this section 86 says that the share of a member in the AOP or BOI shall not be on that the income tax shall not be payable by the assessor in respect of his share in the income of the AOP or the BOI. So before we come back here, we go back again to section 67A, और सबसे पहले हम ये समझें कि सेक्शन 67A के अनुसार how are we supposed to compute the income of the member, जिसकी बात यहाँ सेक्शन 86 में कही जा रही है। So we go back to section 67A, और यहाँ से ना जाके I'll take you through the chapter so that you do realize that it is part of chapter 6. Section 67A. Now this is section 67A for the method of computation. मेंबर का शेयर कैसे कंप्यूट किया जाएगा ईओपी या बीओआई के इनकम में। सेक्शन 67A says that टोटल इनकम को कंप्यूट करने में एक एसएससी की जो कि एक मेंबर है ईओपी या बीओआई का, जहां पर जो शेयर्स हैं मेंबर के वो डिटर्मिनेट हैं एंड नोन है। डिटर्मिनेट का मतलब वो तय किए जा सकते हैं और जाने गए हैं, नोन है यानी एवरीबडी नोज कि कहने मतलब कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उससे क्लियर है कि उनका इट कैन बी नोन कि व्हाट इज द शेयर ऑफ दैट मेंबर या व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द शेयर ऑफ दैट मेंबर इन द इनकम ऑफ दैट ईओपी और द बीओआई। सो वेरेवर द शेयर्स के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है and the shares are determinate and known, ऐसे केस में जब हम टोटल इनकम को कंप्यूट करते हैं मेंबर के लिए, तो whether the net result of the computation of the total income of such AOP or the BOI is a profit or loss, भले ही AOP का लॉस हो रहा है या कोई प्रॉफिट हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। His share shall be computed as follows, तो उसका शेयर जो है प्रॉफिट या लॉस होगा तो इस हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा जैसा कि
इसके बाद जो सबसेक्शंस आ रहे हैं या जो क्लॉजेज आ रहे हैं ए बी सी, उनके अनुसार वो कंप्यूट किया जाएगा. सो दिस इज द मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ फॉर द मेंबर. नाउ सबसे पहला क्या करना है, we are calculating the share of the member in the income of the EOP or the BOI. So first of all what we have to do is, अगर कोई इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन या रिम्यूनरेशन किसी भी नाम से जो पुकारा जाए, अगर वो मेंबर को दिया गया है in respect of the previous year, उस सैलरी, बोनस, कमीशन या रिम्यूनरेशन जो कि मेंबर को दे दिया गया है वो डिडक्ट कर दिया जाएगा फ्रॉम द टोटल इनकम ऑफ द EOP एंड द BOI. EOP या BOI के इनकम में से जो पेमेंट मेंबर को किया गया है इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन या किसी भी रिम्यूनरेशन के रूप में, उसको माइनस कर दिया जाएगा और जो बाकी बची राशि होगी द बैलेंस असर्टेन्ड, और जो बाकी बची हुई राशि को पता लगाया जाएगा, असर्टेन किया जाएगा एंड अपोर्शन्ड, और बांट दिया जाएगा अमंग द मेंबर्स इन द प्रोपोर्शंस इन विच दे आर एंटाइटल्ड टू द शेयर इन द इनकम ऑफ द एसोसिएशन ऑफ द बॉडी. और वो राशि को, बची हुई राशि को मेंबर्स में उनका जो भी एंटाइटलमेंट है शेयर का उसके इनकम में, उस एंटाइटलमेंट के प्रोपोर्शन में उनको बांट दिया जाएगा जो बाकी बची राशि होगी. अब देखिए, इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन या रिम्यूनरेशन तो मेंबर को मिल ही गया है. उसके अलावा जो मिल रहा है उसको, तो पहले वो राशियां पहले हटा देंगे और फिर बाकी बची राशि को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर देंगे. इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिम्यूनरेशन तो पर्टिकुलर काम के लिए दिए जा रहे हैं, तो उसमें उसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में. नाउ वेयर द अमाउंट अपोर्शन्ड टू अ मेंबर अंडर क्लॉज ए, अंडर क्लॉज ए, यानी क्लॉज ए में जो भी अमाउंट अपोर्शन हुआ, यानी कि अपोर्शन किया गया बाकी बची हुई राशि को, अगर वो अमाउंट एक प्रॉफिट है तो कोई भी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन या रिम्यूनरेशन जो मेंबर को पे किया गया था एसोसिएशन या बॉडी के द्वारा उस प्रीवियस ईयर के रिस्पेक्ट में, उसको ऐड कर दिया जाएगा, शैल बी एडेड टू दैट अमाउंट. यानी एनी प्रॉफिट विल बी एडेड टू the interest, salary, bonus, commission और remuneration which is received by the member, और ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, and the result shall be treated as the member share, और जो परिणाम है उसको मेंबर का शेयर मान लिया जाएगा in the income of the association or the body, उस एसोसिएशन के इनकम में या उस बॉडी के इनकम, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के इनकम. उसके बाद क्या होता है, अगर वो लॉस है, अगर प्रॉफिट है तो जोड़ दिया जाएगा, अगर लॉस है तो उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा, यानी आपस में माइनस कर दिया जाएगा. अगर मान लीजिए इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन या रिम्यूनरेशन का अमाउंट ज़्यादा है और लॉस कम है तो पॉजिटिव फिगर आ जाएगी. अगर वो लॉस ज़्यादा है तो एक नेगेटिव फिगर आ जाएगी, जो कि आगे कैरी फॉरवर्ड हो सकता है. सो अगर प्रॉफिट है तो जोड़ देना है, अगर लॉस है तो एडजस्ट कर देना है या माइनस कर देना है जैसा कि सी में लिखा हुआ है, shall be adjusted, देखिए यहाँ पे against that amount. Now we come to 67A subsection 2. So subsection 2 says the share of a member in the income or loss of the association or body as computed in the subsection 1 shall for the purposes of the assessment be apportioned under the various heads of income in the same manner in which the income or loss of the association or body has been determined under each head of income. तो ये जो मेंबर का शेयर है, जो क्लॉज जो कि मेंबर का शेयर डिटरमिन किया गया है सबसेक्शन 1, असेसमेंट के पर्पज से उसको जो जो हेड्स ऑफ इनकम में वो था, EOP और BOI के इनकम जब कंप्यूट की गई थी, उसी हेड ऑफ इनकम के अनुसार वो अपोर्शन कर दिया जाएगा, जिस प्रोपोर्शन में वो इनकम या लॉस जो एसोसिएशन या बॉडी का था वो डिटरमिन किया गया था अंडर ईच हेड ऑफ इनकम. क्योंकि एसोसिएशन या बॉडी का जो इनकम है वो अलग अलग हेड ऑफ इनकम में डिटरमिन किया गया रहा होगा. अब जो उसमें से इनकम आ रहा है तो उसको जब मेंबर को दिया जा रहा है, तो मेंबर को दिया जाने के बाद भी मेंबर के हाथ में भी वो अलग अलग हेड्स में उसको अपोर्शन कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा. जिस तरह से वो हेड ऑफ इनकम बने थे
एसोसिएशन के इनकम में या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के इनकम को जब कंप्यूट किया गया था, तो अलग अलग हेड ऑफ इनकम में डिवाइड हो गया। उसके बाद कोई भी अगर इंटरेस्ट विच इज पेड बाय अ मेंबर ऑन कैपिटल बोरो, अगर मेंबर ने कोई कैपिटल बोरो किया है फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द यूपी और इसलिए बोरो किया है कि उसको इन्वेस्टमेंट करना है यूपी या बीओआई में, तो इन दैट केस वट एवर इंटरेस्ट इज पेड बाय दैट मेंबर, it shall, in computing the share chargeable under the head profits and gains of business profession, जो शेयर इस हेड में निकाला गया, पर हमने अलग अलग हेड्स में बांट दिया था, तो जो हमने इस हेड में यानी प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस या प्रोफेशन वाले हेड में जो राशि ली थी, उसमें से हम ये जो इंटरेस्ट पेड है बाय अ मेंबर ऑन कैपिटल बोरोड, दैट विल बी रिड्यूस्ड, दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम हिज शेयर। तो ये डिडक्शन एक तरह से उसके इनकम में से अलाउ किया जा रहा है उस मेंबर को। So that is the method by which the computation of the share of the member has to be done. So first of all, whatever interest, salary, bonus, commission has to be taken, and then to that we have to add the share from the remaining part of the income of the AOP or the BOI in the profit sharing rate, and add both the things. So whatever amount we get after adding that way, or subtracting if it is a loss, that is the share of the member in the income or the loss of the EOP or the BOI. अब ये जब कंप्यूट हो गया 67A में, उसके बाद सेक्शन 86 पर फिर से आते हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड इट वंस अगेन, कि नाउ वी हैव what is the share of that member. Section 86 says that income tax shall not be payable by the assessee in respect of his share. Now, subject to the provision that proviso that if the AOP or the BOI was chargeable at maximum marginal rate, then we need not include it in his total income. And if it was any other case, or that means that it was a case where the tax on the AOP or the BOI was not payable at the maximum marginal rate, so in that case the share of the member will definitely form part of his total income. तो ये जो B वाला पार्ट है 86B वाला जो पार्ट है, इसमें क्या हो रहा है कि the share of the member is added to his total income. Okay, now though it is being added to the total income, it is also being said that income tax shall not be payable by the assessor. So ये वो केस है जहां पर an income has been added to the total income, but no tax is payable by the assessee on that part. So now this position 86B की जो position है, that gets covered by section 110. So we go to section 110 and check out what is the provision in section 110. So 110 says कि wherever there is any income which is included in the total income, but on that tax is not payable. So section 86 says that tax is not payable on the share of a member which is included in his total income if the AOP or the BOI is not paying tax or not chargeable to tax at the maximum marginal rate. So in those cases this provision becomes applicable, and then we have to apply the computation as given here to arrive at that the tax on that total income. And what we have to do is that we calculate the tax on the total income, and then we calculate the tax on that amount which is on which income tax is not payable. So we just calculate the rate on that, and once we get that tax, we reduce that tax from the tax on the total income which we had already calculated.
In essence what happens is that क्योंकि हम इस इनकम को जिस पे इनकम टैक्स नॉट पेएबल है उसको हम टोटल इनकम में शामिल कर दे रहे हैं. सो व्हाट इज हैपनिंग इज द टोटल इनकम का जो ब्रैकेट है या उसका जो स्लैब है वो ऊपर शिफ्ट हो जाता है और वही उसका असर है यहाँ पे इस तरह से कंप्यूटेशन को करने का. ओके, नाउ वी गो टू सेक्शन 115. Rather 115AB, 15A. Okay, now 115A says tax on dividends, royalty and technical service fees in the case of foreign companies. Now foreign companies are operating in India and they are getting dividend, they are getting royalty and they are getting technical service fees for the technical services they are giving. Now, how do we tax that? 115A says that where the total income of a non-resident or a foreign company, this applies not just to a foreign company but to a non-resident person also who is not a company. So if a person is a non-resident or if a person is a foreign company, so in that case, if its income includes income by way of dividends or which are other than dividends referred to in section 115O, or if it includes interest received from government or an Indian concern on monies borrowed or debt incurred by government or the Indian concern in foreign currency, not being interest of the nature referred to in subclause 2A or subclause 2AA. Then if it is interest received from the infrastructure debt fund, जिसका reference 1047 में है, or if it is the interest of the nature and extent referred to in 194 LC or 194 LD, or if it is a distributed income being interest referred to in subsection 2 of 194 LBA, or if it is the income received in respect of units which are purchased in foreign currency of a mutual fund. So अगर इनकम इस नेचर की है जो कि इंटरेस्ट है, डिविडेंड है या यूनिट्स से जो इनकम होती है वो है, which are particularly referred in these sections, in that case the method of computation is given. The income tax payable shall be the aggregate of certain things. So first we'll see what do we have to add to get at income tax payable, and then we go back to understand what exactly these amounts are, or rather let's do it beforehand. तो सबसे पहले देखते हैं कि इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड. अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड के बारे में 1047 में वर्णन है. लेट अस गो टू 1047. So 1047 says that any income of an infrastructure debt fund which is set up in accordance with guidelines as may be prescribed, which is notified by the central government in the official gazette. इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड जो कि गाइडलाइंस के अनुसार सेटअप किया गया है, जो गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है. इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड ऑब्वियसली गिव्स लोन्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और इसलिए चूंकि एक बहुत ही जनता के हित का कार्य है इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड का कार्य, एंड द गवर्नमेंट वांट्स टू एनकरेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द कंट्री, सो द इनकम ऑफ दीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स इज नॉट इंक्लूडेबल इन द टोटल इनकम एट ऑल. टोटल इनकम में शामिल नहीं होगा, और आप जानते हैं कि टोटल इनकम में शामिल नहीं होगा तो टैक्स नहीं होगा. नाउ हैविंग अंडरस्टूड दिस कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड की यहाँ बात की जा रही है, सो वी क्लियरली अंडरस्टैंड कि जो इंटरेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड से हमको रिसीव हो रहा है, मतलब फॉरेन कंपनी को रिसीव हो रहा है या नॉन रेजिडेंट को रिसीव हो रहा है, वो इसलिए रिसीव होगा क्योंकि दे हैव डन फंडिंग इनटू द इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड.
like non-resident and foreign companies will come from outside and they will invest their money in the infrastructure debt fund. And in turn, the infrastructure debt fund will give loans for infrastructure development. And on that, it will have certain income which will be tax free. But what about the taxation on the interest which is received by the non-resident or a foreign company from the infrastructure debt fund? So that will be taxed as per the provisions of section 115A, which are before you. Now let us go to see 194 LC. What is the nature of this interest? 194 LC है कि इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम इंडियन कंपनी. जब भी कोई इनकम इंटरेस्ट के रूप में, जिसका रेफरेंस सेक्शन 2 में यहां किया जा रहा है, वो इनकम इज पेएबल टू ए नॉन रेजिडेंट, यानी इंडियन कंपनी नॉन रेजिडेंट को इनकम पे कर रही है इन द नेचर ऑफ इंटरेस्ट, but non-resident or to a foreign company. And this income in the nature of interest is paid by a specified company or by a business trust, because obviously these non-resident and foreign companies are investing their money in that specified company or in the business trust. Then there is a TDS provision for that. So when we are saying that we are referring to the interest received as mentioned in 194 LC, that is that interest which is received by the non-resident or the foreign company from the specified Indian company or a business trust. It could be not just a company but a specified company or from the business trust. And specified company means any Indian company. So if a non-resident or any foreign company invests in any Indian company any money and they get interest, that becomes part of taxability under section 115A. Now let's go to the next thing, and that is 194 LD. So 194 LD है कि अगर कोई पर्सन रिस्पॉन्सिबल है किसी पर्सन को पे करने के लिए जो कि एक फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है या क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर है, तो ये फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर या क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर कैन बी अ non-resident or a foreign company. And if any income by way of interest is paid to that FII or to the QFI, because that person has invested money into the FII or the has invested money in with that person, and that person is paying interest to the FII or the QFI. In that case, the interest which is received by the FII or the QFI, it will be taxed as per the provisions of section 115A. We go back to 115A again. So the next thing is 194 LBA. What is this income which is being distributed being interest referred to in 194 LBA 2? 194 LBA 2 को देख लेते हैं, उसमें क्या है. Where any distributed income referred to in section 115UA being of the nature referred to in clause 23 FC of section 10 is payable by a business trust to its unit holder, being a non-resident or a foreign company. Business trust अपने यूनिट होल्डर को इनकम दे रहा है और उस इनकम का जो नेचर है वो 1023 FC में मेंशन्ड है, रेफर्ड है. The nature of the income is referred to in section 1023 FC. So in that case, there is a provision of tax TDS on that income. Now let us see what is mentioned in 1023 FC. What is the nature of this income? And of course, ये जो income है, it is a distributed income which is referred to in section 115 UA also. And the nature of this income is referred to in 1023.
So let us see what is mentioned in 1023 FC. Okay, so we come to 1023 FC. 1023 FC is the income of a business trust, and business trust की जो income है, that is exempt from income tax under section 10. So it is not included in the total income of the business trust. Any income of a business trust which is in the nature of the interest received or receivable from a special purpose vehicle, or which is in the nature of a dividend, which is referred to in subsection 7 of 115O. So income of the business trust is referred to in section 23 FC of section 10. Special purpose vehicle, we already know that we have understood earlier also, but it is any company which is floated, any Indian company which is floated by the business trust, and in which the business trust holds a controlling interest. So having understood that the nature of this income, we again go back to our section 115, and we say that we have understood this, the nature of this income, which is mentioned in 194 LBA. So now we are left with one more thing, which is 115O, other than the dividends referred to in 115O. So what are those dividends which are referred to in 115O? Now 115O में वो dividends हैं जो कि डोमेस्टिक कंपनीज का जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है उससे वो डिविडेंड के रूप में प्राप्त होता है एसेसीज को, और 115O में कहा जा रहा है, which is a special provision relating to tax on the distributed profits of the domestic companies, कि in addition to the income tax chargeable in respect to the total income of a domestic company for any assessment year, any amount which the domestic company declares, distributes, or pays by way of dividend on or before 31st day of March 2020, whether out of the current profits or out of the accumulated profits, shall be charged to additional income tax at the rate of 15% in the hand of that company. जो भी कंपनी, ये जो इंडियन कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी है, जो ये डिविडेंड दे रही है, उस पर वो कंपनी टैक्स देगी. तो अब ये प्रावधान जो था 31st डे मार्च 2020 से खत्म हो गया. So up to 31st day of March 2020 तक जो भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, on that domestic company was paying tax. But here, when we are reading 115A, what is being said is that we are not talking about the dividends which are mentioned in 115O. तो domestic companies के से जो प्राप्त डिविडेंड है या डिक्लेयर्ड जो उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे. Dividends which is actually received by a non-resident or a foreign company. So obviously ये जो 115O में जो dividend है, that is a dividend declared by a company, not a dividend received. So in that sense, it is therefore it is excluded from here. Now wherever the income is of this nature, जो इस तरह के dividends हैं या interest हैं जो रिसीव किए जा रहे हैं किसी नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी के द्वारा, इनकम टैक्स उसको कैसे देना है उसके ऊपर. The amount of income tax which is calculated on the amount of the income by way of dividend, if any, included in the total income at the rate of 20%. तो जो डिविडेंड वाली मात्रा है जो 1 में मेंशन्ड है, उस पर 20% रेट पर टैक्स लिया जाएगा. Then the amount of income tax calculated on the amount of income by way of interest referred to in subclause 2, if included in the total income at the rate of 20%. सब क्लॉज 2 में जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या किसी इंडियन कंसर्न से, जो मनीज बोरो किए जा रहे हैं या जो डेट इनकर की जा रही है सरकार के द्वारा या किसी इंडियन कंसर्न के द्वारा, फॉरेन करेंसी में अगर वो डेट इनकर की जा रही है, यानी मान लीजिए कि सरकार या कोई इंडियन कंपनी है कंसर्न फॉरेन करेंसी में कोई
लोन लेती है किसी नॉन रेजिडेंट कंपनी से और उसके ऊपर वो इंटरेस्ट देती है, इंटरेस्ट है ये क्लॉज 2 में कवर हो रहा है, और इस इंटरेस्ट पर 20% रेट पर उसको टैक्स देना है। उसके बाद द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स विच इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट रेफर टू इन सब क्लॉज 2A, 2AA, 2AB एंड 2AC। 2A, 2AA, 2AB, 2AC, ये जो 4 क्लॉज हैं ये हमने देखे हैं, और इनमें जो इनकम आ रही है वहाँ पर भी 20%, वहाँ पर 5% का टैक्स लगेगा। और उसके बाद एक और क्लॉज यहाँ पे ऐड किया है, द फॉलोइंग क्लॉज BA शैल बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द एग्जिस्टिंग क्लॉज BA ऑफ सेक्शन 115A। नाउ फ्रॉम 1/4/2021 this BA clause has been substituted. So earlier it was being, these incomes were being taxed at 5% like this as mentioned in BA here, the earlier BA. अब जो BA है वो इस तरह से कर दिया गया है कि द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स विच इज कैलकुलेटेड ऑन द इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट रेफर टू इन सब क्लॉज 2A। 2A पर 5% है और 2AA, 2AB and 2AC पर whatever rate is provided in the respective sections referred to in the said sub clause, तो उसके लिए जो रेट जो भी दिया जा रहा है वहाँ पर जो TDS का रेट है उन सेक्शंस में दे दिया गया है, तो जहाँ पर वो रेट दे दिया गया वही रेट लगेगा और नॉट 5%, because 2AA, 2AB and 2AC, all these provisions relate to TDS provisions, और TDS काटा जा रहा है सर्टन इंटरेस्ट पर, तो ये कर दिया गया जितना भी TDS काटा जा रहा है that exactly will be the tax also. और उसके बाद when we come to C, the amount of income tax which is calculated on the income in respect of units referred to in subclause 3. सबक्लॉज 3 में जो यूनिट्स हैं उसके ऊपर 20% का रेट है, और डी में कहा जा रहा है द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स विद विच ही और इट would have been chargeable had his or its total income been reduced by the amount of the income referred to in all these clauses. तो इसके अलावा भी अगर कोई इनकम है उस नॉन रेजिडेंट की या उस फॉरेन कंपनी की जो इनकम यहाँ पे नहीं मेंशन्ड है, उस पर जो भी टैक्स लगता है एज पर दी अदर प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट वो लगेगा, और इन पर्टिकुलर अमाउंट्स पे जो रेट यहाँ पे मेंशन्ड है वो लगेंगे, और उन सब का एग्रीगेट जो टैक्स आएगा that will be the tax chargeable on that non-resident or on that foreign company. Now we go to 115AB. A non-resident not being a company or a foreign company includes any income by way of royalty or fees for technical services other than the income referred to in subsection 1 of section 44DA. Now if we read it in a continuity, a non-resident or a foreign company where the total income of the non-resident or a foreign company includes any income where the total income, rather we should read like this, where the total income of a non-resident or a foreign company includes any income by way of royalty or fees. अगर जो इनकम नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी को प्राप्त हो रही है वो रॉयल्टी के नेचर की है या फिर टेक्निकल सर्विस के फीस के नेचर की है, और ऐसी इनकम नहीं है जो 44DA के सबसेक्शन 1 में मेंशन्ड हो, रेफर्ड हो, और ये जो रॉयल्टी या फीस है this is being received from the government or from any Indian concern in pursuance of an agreement made by the foreign company with the government or with the Indian concern after the 31st day of March 1976. कोई भी एग्रीमेंट जो कि नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी करती है किसी इंडियन कंसर्न के साथ या किसी इंडियन गवर्नमेंट के साथ, जो कि एग्रीमेंट 31st डे ऑफ मार्च 1976 के बाद किया जा रहा है, और उस एग्रीमेंट के तहत कोई इनकम उस रेजिडेंट, उस नॉन रेजिडेंट या उस फॉरेन कंपनी को प्राप्त हो रही है रॉयल्टी के रूप में या टेक्निकल सर्विसेज के फीस के रूप में, ऐसी इनकम कवर्ड है इस बी क्लॉज में,
and where such agreement is with an Indian concern, the agreement is approved by the central government. और अगर कोई agreement Indian concern के साथ हुई है तो उसका approval central government से लिया गया होना चाहिए for the purposes of this section. And where it relates to a matter included in the industrial policy for the time being enforced, the government of India, the agreement is in accordance with that policy. और अगर कोई industrial policy है government of India की, तो जो भी approval लिया गया है, it is subject to the fact that the agreement should be in accordance with that industrial policy. In that case, जो taxation होगा वो इस तरह से होगा जैसा कि आगे 3 प्रावधान दिए हुए हैं A, B and C. So first of all, we have to understand that what is being excluded under 44DA1. So if we go to 44DA and we go to 44DA1. Now 44DA1 is a special provision for computing the income by way of royalty in case of non-residents. And this is being excluded there. So let us see what is being excluded. The income by way of royalty or fees for technical services which is received from the government or an Indian concern in pursuance of an agreement made by a non-resident or a foreign company after the 31st March of 2003. Where such non-resident or a foreign company carries on business in India through a permanent establishment situated therein. Non-resident या foreign company का एक permanent establishment है इंडिया में और उस permanent establishment के through वो कार्य कर रही है or it is performing professional services from a fixed place of profession situated therein, या उसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ प्रोफेशन है इंडिया में और वहाँ से वो प्रोफेशनल सर्विसेज परफॉर्म कर रही है. एंड द राइट प्रॉपर्टी और द कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज आर पेड इज इफेक्टिवली कनेक्टेड विद सच परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट. जो राइट या जो प्रॉपर्टी या जो कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में रॉयल्टी दी जा रही है या जिसके रिस्पेक्ट में फीस दी जा रही है टेक्निकल सर्विसेज की, वो जो राइट प्रॉपर्टी या कॉन्ट्रैक्ट है जिसके रिस्पेक्ट में ये राशियां दी जा रही हैं, उसका वो इफेक्टिवली कनेक्टेड है ऐसे परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट से या ऐसे फिक्स प्लेस ऑफ प्रोफेशन से, यानी कि असरदार तरीके से उसका कनेक्शन उसी परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट से होना चाहिए, केवल नाम के लिए नहीं. एक्चुअली काम भी वही होना चाहिए, उसका कनेक्शन उस परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट से होना चाहिए. का मतलब ये है कि उसी परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट से वो सर्विसेज दी जानी चाहिए या उसी फिक्स प्लेस ऑफ प्रोफेशन से वो प्रोफेशनल सर्विस दी जानी चाहिए. तो ऐसी इनकम को कंप्यूट किया जाएगा अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट. नाउ एक्सक्लूडिंग 44DA वुड मीन दैट जहां पर कोई इनकम डिराइव हो रही है जहां पे परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं भी है और बिना परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट हुए इनकम डिराइव की जा रही है, that will be covered under 115A. So we come back to 115A. क्योंकि जो इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में टैक्स हो रही है वो तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो तो उस पर्टिकुलर हेड में दिया होगा. But 115A is a special provision where जिस इनकम को 115A में टैक्स होना है वो 115A के अनुसार ही टैक्स होगी. So we are reading 115A here once again and we are saying that कोई अगर नॉन रेजिडेंट कोई फॉरेन कंपनी है जिसको रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज प्राप्त हो रही है जो कि परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट से नहीं प्राप्त हो रही और बिना किसी परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट के प्राप्त हो रही है, लेकिन इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो एग्रीमेंट होना चाहिए और एग्रीमेंट का अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाना चाहिए. ये जो अप्रूवल की बात है ये 44DA में नहीं थी. तो ऐसे केस में जहां पर एग्रीमेंट किया गया है या तो नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी के द्वारा इंडियन गवर्नमेंट से या फिर किसी इंडियन कंसर्न से एग्रीमेंट किया गया है, और अगर इंडियन कंसर्न से एग्रीमेंट किया गया है तो उस एग्रीमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव भी किया है. ऐसे कंडीशन में उस इनकम पर जो टैक्स लिया जाएगा
वो इन 3 राशियों को जोड़ के लिया जाएगा। सबसे पहले the amount of income tax calculated on the income by way of royalty if any included in the total income at the rate of 10%, यानी रॉयल्टी पर 10% के हिसाब से टैक्स लगेगा। उसके बाद फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज जो है उस पर भी 10% के हिसाब से टैक्स लगेगा। The amount of income tax calculated on the income by way of fees for technical services if any included in the total income at the rate of 10%, or the amount of income tax with which it would have been charged with highest total income been reduced by the amount of income by way of royalty and fees for technical services, यानी कि अगर हम टोटल इनकम में से रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज घटा देते हैं, बाकी बची जो राशि पर जो भी इनकम टैक्स लगता है वो इनकम टैक्स लिया जाएगा। तो एक सेंस में फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज और रॉयल्टी पर 10% और बाकी राशि पर जो भी टैक्स लगता है एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट वो लिया जाएगा, और तीनों को जोड़ के जो भी टैक्स आएगा दैट टैक्स विल हैव टू बी पेएबल इन दिस कंडीशन। Obviously, the words fees for technical services and foreign currency and royalty and unit trust of India have been already defined in various other sections of the Income Tax Act, and therefore we are not again referring to that because they have been already defined and covered in our other lectures. We are not focusing much on the nature of the service being given out here. We are just broadly understanding that royalty is being paid or fees for any technical services being paid here. And now we go to 115A1A. तो 115A1A में क्या कहा गया है? Where the royalty referred to in clause B of subsection 1 is in consideration for the transfer of all or any rights, including the granting of the license in respect of a copyright in any book to an Indian concern, or in respect of any computer software to a person resident in India. जहां पर कोई कॉपीराइट दिया जा रहा है किसी इंडियन कंसर्न को, या कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दिया जा रहा है किसी ऐसे पर्सन को जो इंडिया में रेसिडेंट है, उसके रिस्पेक्ट में अगर रॉयल्टी पे की जा रही है, द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई इन रिलेशन टू सच रॉयल्टी एज इफ द वर्ड्स द एग्रीमेंट इज अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और वेयर इट रिलेट्स टू अ मैटर included in the industrial policy for the time being imposed of the government of India, the agreement is in accordance with that policy occurring in that sense, said clause had been omitted. पर्टिकुलर रॉयल्टी के केस में एग्रीमेंट को अप्रूव कराना आवश्यक नहीं, और किस केस में आवश्यक नहीं है? जहां पर रॉयल्टी इस बात के लिए दी जा रही है क्योंकि कोई ऐसा राइट जो कि एक बुक में कॉपीराइट है वो ट्रांसफर किया जा रहा है किसी इंडियन कंसर्न। बुक में कॉपीराइट का ट्रांसफर किया जाना कोई बहुत ऐसा सीरियस इशू नहीं है जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की आवश्यकता हो। या कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे बेचने का के प्रावधानों को मुश्किल कर दिया जाएगा और इसलिए तो उसमें वहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा पैदा हो जाए, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आसानी से बिकने चाहिए, और उसके लिए जो भी रॉयल्टी है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल का प्रोसीजर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उस प्रोसीजर को यहाँ पर कैंसिल किया गया। हैड बीन ओमिटेड मतलब ये जो प्रोसीजर है कि भाई अप्रूवल लिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट से एग्रीमेंट का या इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट को हटा दिया गया है फॉर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या बुक कॉपीराइट के रॉयल्टी के रिलेशन। Provided that such book is on a subject, the books on which are permitted according to the import trade control policy of the government of India for the period commencing from the 1st day of April 1977 and ending with the 31st day of March 1978 to be imported into India under an open general license. बुक ऐसी होनी चाहिए जो परमिट की गई है इंपोर्ट ट्रेड कंट्रोल पॉलिसी के तहत। नॉन परमिटेड बुक्स के कॉपीराइट पर ये एग्जाम्पशन नहीं दिया जा रहा कि उनको अप्रूवल नहीं कराया जाएगा। ये जो प्रोवाइजो है ये एक एक्सेप्शन ये कर रहा है कि जहां पर बुक अगर ऐसी है जो कि परमिटेड नहीं है तो वहां पर अप्रूवल जरूर कराया जाएगा, और बुक ऐसी होनी चाहिए जो कि ओपन जनरल लाइसेंस के तहत इंपोर्ट की जा सके। उसके बाद जो सेकंड प्रोवाइजो है वो कह रहा है कि जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है अगर वो परमिटेड है इंपोर्ट ट्रेड कंट्रोल पॉलिसी के तहत फॉर द टाइम बीइंग इनफोर्स टू बी इंपोर्टेड इनटू इंडिया अंडर ओपन जनरल लाइसेंस, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के इंपोर्ट के लिए भी ओपन जनरल लाइसेंस
के तहत वो इंपोर्ट हो सके, ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ओपन जनरल लाइसेंस वर्ड का मीनिंग जो है उसको इंपोर्ट कंट्रोल ऑर्डर 1955 से बोरो किया जा रहा है, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वर्ड का मीनिंग 80 HHC सेक्शन के एक्सप्लेनेशन के क्लॉज बी से बोरो किया जा रहा है। उसके बाद सबसेक्शन 2 पे आते हैं 115A के। Nothing contained in subsection 1 shall apply in relation to any income by way of royalty received by a foreign company and from an Indian concern in pursuance of an agreement made by it with the Indian concern after 31st day of March 1976, if such agreement is deemed for the purposes of the first proviso to clause 6 of subsection 1 of section 9 to have been made before the first day of 1976, and the provisions of the Annual Finance Act for calculating, charging, deducting, or computing income tax shall apply in relation to such income as if such income has been received in pursuance of an agreement made before the first day of April 1976. यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर सेक्शन 916 के तहत के जो फर्स्ट प्रोवाइजो हैं उसके तहत अगर ये मान लिया गया था कि जो एग्रीमेंट है वो 1 अप्रैल 1976 से पहले की गई है, तो अगर ये वहाँ मान लिया गया है तो यहाँ पर भी हम उसको मान लेंगे। और क्योंकि यहाँ पे हमने रिक्वायरमेंट यहाँ दिया है कि 31st डे ऑफ मार्च 1976 के बाद का वो के लिए वो एग्रीमेंट होना चाहिए, तो यहाँ पर भी वो अज्यूम कर लिया जाएगा कि 31st डे ऑफ मार्च के बाद का एग्रीमेंट है, के पहले का वो एग्रीमेंट है, और यहाँ के क्लॉज उस पर अप्लाई नहीं करेंगे। और सबसेक्शन 3 पे आते हैं। No deduction in respect of any expenditure or allowance shall be allowed to the SSE under 28 to 44C and section 57। यानी बिजनेस हेड में या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में कोई डिडक्शन या अलाउंस नहीं अलाउ किया जाएगा उस इनकम के रिस्पेक्ट में जिस इनकम की बात 115A में की जा रही है, जिससे कि ऐसा ना हो कि उस इनकम के नेचर को देख के कोई व्यक्ति बिजनेस हेड के एक्सपेंडिचर्स को क्लेम कर ले या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड को के हेड के एक्सपेंडिचर्स को क्लेम कर ले। नाउ वी कम टू सबसेक्शन 4, where in the case of an assessee referred to in subsection 1, the gross total income consists only of the income referred to in clause A of that subsection। अगर ग्रॉस टोटल इनकम में केवल क्लॉज ए वाली इनकम है यानी डिविडेंड है, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड टू हिम अंडर चैप्टर 6A, तब कोई चैप्टर 6A का डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। और अगर ग्रॉस टोटल इनकम इंक्लूड्स एनी इनकम रेफर्ड टू इन क्लॉज ए ऑफ दैट सबसेक्शन, the gross total income shall be reduced by the amount of such income, and the deduction under chapter 6A shall be allowed as if the gross total income as so reduced were the gross total income of the assessee। और क्या किया जाएगा कि क्लॉज ए वाली कोई भी इनकम है उसको पहले हटा दिया जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम में से, और जो बचेगी ग्रॉस टोटल इनकम उस पर फिर चैप्टर 6A का बेनिफिट दे दिया जाएगा। जो क्लॉज ए में जो है डिविडेंड वाली इनकम उस पर चैप्टर 6A का बेनिफिट, सॉरी क्लॉज ए में जितने भी इनकम्स हैं फ्रॉम 1 to 3 उन पर चैप्टर 6A का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो टैक्सेशन हो रहा है ये 115A के अंतर्गत ही हो रहा है और इसके ऊपर कोई और डिडक्शन देने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो किसी हेड ऑफ इनकम का डिडक्शन हो या फिर किसी चैप्टर 6A का डिडक्शन हो। Provided that nothing contained in this subsection shall apply to a deduction allowed to a unit of an IFSC under section 80LA। इस सबसेक्शन के यानी सबसेक्शन 4 में कुछ भी लिखा हो that will not apply to a deduction allowed to a unit of an IFSC under section 80LA। जो IFSC का जो यूनिट है उसको ये डिडक्शन अलाउ कर दिया गया है अंडर सेक्शन 80LA। तो 80LA का बेनिफिट जहां पर मिल रहा है उस यूनिट को, तो वो उसको डेफिनेटली मिलेगा। अब आते हैं 5 पे। It shall not be necessary for an assessee referred to in subsection 1 to furnish under subsection 1 of section 139 a return of his or its income
if his or its total income in respect of which he or it is assessable under this act during the previous year consisted only of the income referred to in clause A or clause B of subsection 1. यहाँ पे कहा जा रहा है कि एसएससी के लिए ये जरूरी नहीं है, अगर वो एसएससी ऐसा एसएससी है जिसका रेफरेंस सबसेक्शन 1 में किया गया है, यानी वो नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी है, उसको 139(1) सेक्शन में कोई रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। यदि हिज और इट्स टोटल इनकम, जो भी उसकी टोटल इनकम थी, उसकी केवल वही इनकम थी जो कि क्लॉज ए या क्लॉज बी में मेंशन्ड है, उसके अलावा अगर और कोई इनकम नहीं है तो फिर उसको यहाँ सेक्शन 139(1) में कोई रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि देखा है हमने कि उस पर टीडीएस पहले ही कट जाएगा, तो रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। और उसके बाद द टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ पार्ट बी हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम सच इनकम, और इन एडिशन टू दैट जो भी टीडीएस उस पर कटना था चैप्टर 17 के पार्ट बी के तहत, वो काट लिया गया है। एंड द रेट ऑफ सच डिडक्शन इज नॉट लेस देन द रेट स्पेसिफाइड, और जिस रेट पे वो काटा गया है, तो जो रेट स्पेसिफाइड है हमारे इस सबसेक्शन 1 के ए और बी क्लॉज में, उस रेट से कम के रेट पर टीडीएस नहीं किया गया हो, इस बात को मद्देनजर रखते हुए अगर वो रेट उससे ज़्यादा है मतलब और कम रेट पे काटा गया तब तो रिटर्न भरना जरूरी हो जाएगा, और अगर वो उसी रेट पे काटा गया जो प्रावधानित है या यहाँ पर प्रावधानित है और यहाँ पर प्रावधानित रेट से कम रेट नहीं है हमारे टीडीएस के प्रोविजंस में, तो फिर उसके लिए रिटर्न ऑफ इनकम भरने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो दिस इज अ बेनिफिट बीइंग गिवन टू द नॉन रेजिडेंट एंड द फॉरेन कंपनीज। इफ दे हैव ओनली दिस इंटरेस्ट एंड डिविडेंड सॉर्ट ऑफ इनकम, उस पर वो टीडीएस अपना उनका कट जाएगा, एंड दैट्स ऑल, दे नीड नॉट फाइल एनी रिटर्न ऑफ इनकम फॉर दैट पर्पस। So with that we complete section 115A, and for today we'll have this much of the session only, and therefore this session has come to an end.